H2 damage because pH mainly damage, right? Okay, hello. So superoxide is में तेज role, you should note down because this can be asked. कल हमने discuss भी किया था. Why thalcode is taking beneficial, then antenna pigment LSC, active switch, role of kinase, है ना? And de novo synthesis of chloroplast, non-Mendelian inheritance, and we discussed about the chlorophyll A synthesis, biosynthesis mechanism, and how much triphosphate is used for one molecule of sucrose synthesis, and then thermodynamics of Kelvin cycle. We have discussed about the role of visco regulation. We have covered yesterday, right? So I did not delete all this. So it should be written. 3 RNA are involved. Which RNA are there? CPM, right? Chloroplast, peroxisome, mitochondria. We have discussed all the roles. Chloroplast, how chloroplast is involved, how peroxisome is involved, how mitochondria is involved. Basically, you can figure out what is the case in the chloroplast, what is happening in the chloroplast. Glycolate synthesis from the Kelvin cycle, right? Ribulose 1,5-phosphate, then 2 cycle, है ना? क्या बोलोगे इसको? This was the which cycle? Like there are many cycles, C2 cycle, C3 cycle, C4 cycle. Sir, this was voice is breaking. नो सर. सर स्क्रीन में सिर्फ पावर पॉइंट ही लिखा हुआ है. हैं? अरे यार, हाँ सर, मेन स्लाइड दिखाई नहीं दे रहा है. पीपीटी दिख रहा है. ये मतलब दिख रहा है? अभी फिर से हाँ, वो आपने वो क्लोरोप्लास्ट वाला जो इमेज है वो रखा है ना अभी. हाँ हाँ, हाँ सर, ये वो C2 C3 C4 लिखा हुआ है. लिखा हुआ है. हाँ हाँ सर, तो दिख रहा है. अभी दिख रहा है? मैं भी दिख रहा हूँ. हाँ सर, आप भी दिख रहे हैं. तो यही से रिचार्ज करते हैं क्योंकि एक एक पॉइंट को डिस्कस करने लेके बहुत चलना पर क्या पूछेगा. तो फिर उसी से C2 cycle is there. We have discussed it already. 2-phosphoglycolate, and this is going to exactly transfer into the peroxisome and convert into the glyoxylate. This is the glycolate cycle, sometimes called as glycolate cycle. कहाँ पे होती है ये क्वेश्चन होता है. peroxisome में होती है, right? And this is also asked कि अगर ये glycolate cycle चलती है and during the glycolate cycle a lot of H2O2 is produced, and why peroxisome is not going to damage, why this peroxide is going to damage all type of cell. They are damaging for all cell type, but इसके लिए क्यों डैमेज नहीं होता है? ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है. तो what your answer will be? What is the answer for this? A lot of H2O2 is produced during the glycolate synthesis from the glycolate, and still this is not going to be damaged. So which enzyme is exactly involved? कौन सा enzyme involved है basically? बोलो, अभी तो नाम लिया था. डिसम्यूटेज, और क्या था? एक और है ना. कल नोट्स भी तो बनाया होगा आप लोगों ने. कितने हैं रिएक्शन जो कि हो रहा है पेरोक्सिसोम में? 5 है जी. 3 reaction in chlorophyll, 2 reaction in mitochondria. Okay, this is the complete steps in the photo respiration. Clear? ये डिस्कस किया था. And then we discussed about the this reverse role of carboxylation and oxygenation by the, and the precursor is same, ribulose 1,5-bisphosphate. ये बोला था कि अगर इक्वल कंसंट्रेशन में होगी इक्वल रेशियो में तो CO2 फिक्सेशन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन will be 80 टाइम मोर, और अगर ये रेशियो 0.04 हो जाती है देन ऑक्सीजनेशन विल प्रोसीड. तो इसी के लिए सारी मैकेनिज्म हो रही है, नेचर ने जो इवॉल्व की
to save the loss of carbon, right? तो ये जो 2G साइकिल चल रही है, 2 साइकिल चल रही है, C2 cycle, that is to save the loss of carbon. We discussed it, right? And also it will discuss that the glycine is transported into the mitochondria by glycine decarboxylase enzyme is there, which is acting to release a lot of CO2. तो CO2 ट्रैपिंग हो रही थी, आपको बताया था, है ना, C4 और काइम में, right? And then this was fixed again by the glycine decarboxylase. तो ये मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स था ग्लाइसिन डिकार्बोक्सिलेज. ये कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि आइडेंटिफाई विच इज द मल्टी एंजाइम यहाँ पे कैटलॉज होता है, कैटलेज इज वेरी रिच इन द peroxisome. That's why peroxisome equation दिया था, why peroxisome not damaged by high H2 because of enzyme catalase. ठीक है ना, यहाँ तक डिस्कस हुआ था, राइट? एंड देयर आर वेरियस मल्टीसेलुलर प्रोटीन्स, मल्टीसेलुलर एंजाइम, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स की बहुत सारे प्रोटीन्स हैं. फॉर एग्जांपल H प्रोटीन, P प्रोटीन, T प्रोटीन, L. तो क्या नाम रख सकते हो? HPTL. HPTL. So all this was discussed, that how to phosphoglycolate, that cannot be one phosphoglycolate, CO2 is wall, and there is 1/4 loss of CO2. So there is a link between this electron transport and Calvin cycle, oxidative photosynthetic Calvin cycle, and the central substrate is ribose 1,5 bisphosphate. Okay, so ribose 1,5 bisphosphate, 3 phosphoglycolate बनेगा, फिर ये आ जाएगा 3 phosphoglycolate, and then CO2 is what? Net carbon loss is here. और यहाँ पे क्या हो रहा है? Net carbon gain is here. So this is kind of balance. साथ साथ चलने से क्या हो रहा है? बैलेंस. तो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, हाउ कार्बन लॉस इज बैलेंस्ड इन C2 cycle. Carbon loss is balanced in C2 cycle. Carbon loss balance कैसे होता है C2 cycle? कार्बन लॉस बैलेंस किससे होता है? बिकॉज ऑफ केल्विन साइकिल. व्हाट वर द लॉस कहां पे हो रहा है? नोट करो, लॉस ऑकर्स इन द C2 cycle, but gain occurs in the Kelvin cycle. So that's why the balance is made. Okay, balance. So Kelvin cycle is capable of independent operation in the presence of adequate substrate, that is ribose 1,5 bisphosphate, right? Ribose 1,5 bisphosphate. So who is regenerating ribose 1,5 phosphate? अगर ये पूछा जाए तो what you can say, the Kelvin cycle is able to regenerate also, है ना? And then CO2 is fixed because that ribose 1,5 phosphate is going to form the 3 phosphoglycerol. तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Remember कि how the carbon loss is maintained. The carbon loss is maintained by regenerating, साथ में लिखते रहते हैं ना, regenerating ribose 1,5 bisphosphate. ठीक है ना? तो अब क्या होता है, जो CO2 होती है, CO2 plus RUBP, right? And they are creating 3 phosphoglycerol. 3 phosphoglycerate. 3 phosphoglycerate.
glycerate, right? Three phosphoglycerate. Clear? Yes, sir. तो अब C2 साइकिल में देखो CO2 लॉस हो रही है, 3-phosphoglycerate बन रहा है, एंड देन रेगुलर 1,5 phosphate, फिर यहाँ पे इधर से भी आ रही है, एंड दिस इज अगेन रिसाइक्लिंग. तो 3-phosphoglycerate formation is important. The starting material is of course RUBP, replace 1,5 this phosphate. So this is the balance maintained between the Kelvin cycle and so अगर ये क्वेश्चन पूछे कि फोटो रेस्पिरेशन इज एसेंशियल और नॉट, फोटो रेस्पिरेशन इज एसेंशियल और नॉट, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो. What will say? चलो दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि सपोज देयर इज ए प्लांट म्यूटेंट, tuberculosis mutant for this photo respiration. So they will do photosynthesis or not? Photosynthesis, yes. Will occur, will not have, not occur. What is the exact role of photosynthesis? यहाँ भी वही चीज है, यहाँ भी वही चीज पूछ रहा है. Photo respiration is required or not? What is the exact role of photo respiration? एब्रेसिव म्यूटेंट है, अब फोटो रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा? आप अगर इसको मान लो 2% CO2 दे रहे हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा या नहीं, या फोटो रेस्पिरेशन होगा कि नहीं? तो जब ये म्यूटेंट है फोटो रेस्पिरेशन के लिए, दे विल नॉट शो एनी photo respiration, पहली चीज. And also it was found from the transgenic plant that C3 plant are living, जिंदा इसीलिए है, C3 plants are protected because of C3 plant protected किसके लिए है? Because of photo respiration. फिर बच्चों फोटो रेस्पिरेशन. सो आपको एक बार बता दूं कि क्या एग्जैक्ट सीन है. Why I am asking this question? ये वाला फोटो रेस्पिरेशन इज एसेंशियल और नॉट. अब आप देखो व्हाट इज हैपनिंग, जब भी फोटो रेस्पिरेशन होती है तो क्या होता है? काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इज दिस इन द हाई लाइट इंस्टेंट. कब होता है फोटो रेस्पिरेशन? टेल मी, एक एक चीज बताओ. इन द हाई लाइट, काफी लाइट की इंटेंसिटी होती है, देन इट इज स्टार्टेड. तो उस टाइम पे क्या मैकेनिज्म टाइम में आपने देखा था? स्टोमेटा इज क्लोज्ड. स्टोमेटा इज क्लोज्ड इन लाइट. ठीक है, तो जब क्लोज हो जाती है देन व्हाट हैपेंस? CO2 एक्सचेंज बंद हो गया, राइट? CO2 एक्सचेंज बंद हो गया, CO2 कंसेंट्रेशन अंदर की तरफ क्या है? लो है. ठीक है, एंड देन
CO2 ये बंद भी होता है वाटर स्ट्रेस की वजह से। स्टोमेटा का टर्गिड एंड फ्लैसिड वाला कॉन्सेप्ट बताया था, फ्लैसिड होगा तो ओपन होगा और टर्जिड होगा तो क्लोज हो गया, टर्जिड होगा तो क्लोज हो गया। ठीक है, हाँ जी बोलो। है ना, अरे कुछ तो बोलो, आज लक्ष्मी को क्या हो गया? लक्ष्मी इज नॉट स्पीकिंग सिंगल वर्ड। लक्ष्मी आर यू एबल टू फोकस? याद करो यस सर। हाँ, फोटो रेस्पिरेशन एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, कैन प्लांट्स का याद करो, वो याद करोगे फिर एडवांस चीजें बता पाएंगे। इसके लिए बार बार पूछना। हाईलाइट इंटेंसिटी होती है तो स्टोमेटा ओपन होने का सवाल नहीं है, अदरवाइज दे विल लूज मोस्ट ऑफ द वाटर। वाटर की लॉस हो जाएगी, उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, स्टोमेटा इज क्लोज। ठीक है, अब ये बताया था मैकेनिज्म कि स्टोमेटा फ्लैसिड होगा तो ओपन होगा, टर्जिड होगा तो दे विल बी क्लोज। तो CO2 कंसंट्रेशन का एक्सचेंज बंद हो गया। अब CO2 कंसंट्रेशन इज लो इनसाइड द सेल्स, मतलब जो भी क्लोरोफिल है, राइट। तो अब क्या होगा कि अब जब स्ट्रेस कंडीशन आ रही है, राइट, वाटर लॉस ना हो, उसको बचाना है, ये सारी सेविंग मैकेनिज्म। सो सेविंग मोड ऑन हो गया, जैसे मोबाइल में होता है। समटाइम इफ बैटरी इज लो, द सेविंग मोड इज ऑन, तो वेरियस फंक्शन इज क्लोज, बहुत सारे फंक्शन क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आपकी एनर्जी ज्यादा खर्च हो रही है, मोबाइल की बैटरी ज्यादा खर्च हो रही है, उसको सेविंग के लिए नेट बंद कर दिया आपने, है ना, आपने GPS बंद कर दिया, ब्लूटूथ बंद कर दिया, एवरीथिंग इज बैकग्राउंड बंद कर दिया, सारा कुछ बंद कर दिया, तो देन लाइफ इज लिटिल बिट मोर। सिमिलरली दे आर नाउ डिसिपेटिंग excess ATP and reducing power from the light reaction। जो लाइट रिएक्शन से बना था उसको आप यूज करना है, क्योंकि आप क्लोरोफिल को बचाना है एक टारगेट से, तो क्लोरोफिल ही नहीं रहेगा तो देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस। तो ओवरऑल फोटो रेस्पिरेशन इज एसेंशियल और नॉट, तो व्हाट यू विल से? दिस इज एसेंशियल, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो देन प्लांट फोटोसिंथेटिक apparatus will burn out। तो ये चीज देखा गया, एराप्टोसिस के म्यूटेंट करा के देखा गया कि इफ दे आर म्यूटेंट इज क्रिएटेड फॉर फोटो रेस्पिरेशन, देन फोटोसिंथेसिस तो होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इसीलिए हो रही है बिकॉज फोटो रेस्पिरेशन मैकेनिज्म, उल्टा बोल रहे हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन मैकेनिज्म डिस्टर्ब है। तो ये जो सेविंग मोड था, जो हाई लाइट इंटेंसिटी से बचाने वाला था, वो ऑपरेटर्स ही जल नहीं समझे। जैसे घर में फ्यूज होता है ना लाइट के लिए, देखा होगा ना, हाई लाइट इंटेंसिटी जब होती है तो व्हाट हैपेंस, आपकी घर की इलेक्ट्रिसिटी, वायरिंग जल जाएगी, लाइट जल जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक खराब नहीं। तो मैं बताऊं, कल की क्लास चलने के पहले सारी ये दर्द जल गई थी, सारा डिस्टर्ब हो गया था इलेक्ट्रिसिटी, तो मुझे 1 घंटा लग गया इसको ठीक करने में। तो काफी स्ट्रगल होता है ना, तो इसी तरह प्लांट के साथ भी स्ट्रगल हो रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 100% आंसर पूछ सकता है कि अब वो फोटो, यू आर नॉट एट दैट एज कि अब दे आर आस्किंग कि फोटो रेस्पिरेशन का क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, अब थोड़ा स्टैंडर्ड चीजें पूछेंगे, स्टैंडर्ड चीजें नहीं, सीधे म्यूटेंट क्रिएट करा देंगे एंड दे विल चेक योर कॉन्सेप्ट कि अगर म्यूटेंट हो जाए तो फोटोसिंथेसिस होगी कि नहीं होगी। तो 90% लोग मानेंगे कि होगी, क्योंकि उनको लगता है फोटो रेस्पिरेशन क्या है भाई, नहीं होना चाहिए, उनके माइंड में ये पहले से है ना। लेकिन एग्जैक्टली व्हाट इज द कंडीशन, फोटो रेस्पिरेशन इज एसेंशियल कंडीशन टू सेव द प्लांट, टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम two mechanism, photo oxidation and photo inhibition, photo oxidation and photo inhibition. Getting my point? What I am saying? लिख लो, photo respiration is essential for saving from two mechanism, photo oxidation, photo inhibition. Photo oxidation and photo inhibition. Photo oxidation, photo inhibition. Photo oxidation, photo inhibition. Okay. ये चीजें कल डिस्कस नहीं हुई थी, तो मुझे लगा कि
मासेस की बात होनी चाहिए, क्योंकि सारा पढ़ने के बाद देन दे कैन आस्क फोटो रेस्पिरेशन में जब कार्बन का लॉस हो रहा है तो इसमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम लोग उसी फेवर में बात करेंगे कि नहीं होना चाहिए। जब कार्बन लॉस हो रहा है तो कौन चाहेगा, बट वो मेंटेन भी हो रहा है बिकॉज ऑफ केल्विन साइकिल, और प्रोटेक्शन भी हो रही है फोटोसिंथेटिक apparatus की बिकॉज ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, क्योंकि CO2 डाउन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, ATP वो यूज कर रहा है तो बचा रहा है अपने फोटोसिंथेटिक apparatus को, राइट। सो दैट केल्विन साइकिल चल रहा है। तो फोटो रेस्पिरेशन को स्टॉप कैसे कर सकते हैं? तो दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन, स्टार्टेड वी डिस्कस दैट व्हेन algal and cyanobacteria are grown in air and they with 5% CO2 and then transferred to low CO2 medium, then they display symptom typical of photorespiration. Photorespiration means oxygen inhibition of photosynthesis at a low concentration. जैसे low concentration होगी तो ऑक्सीजन will start, CO2 concentration लो होगी तो there will be inhibition of photosynthesis. तो ये exactly photorespiration यही, photosynthesis से रेट काफी कम हो जाती है उस टाइम पे, लेकिन बंद नहीं होगी, थोड़ा सा होगा। ये दिमाग में नहीं बिठलना है यहाँ के डिस्कशन से कि बिल्कुल ही फोटो रेस्पिरेशन अगर डिस्टर्ब करोगे तब तो कंप्लीटली जाएगा, क्योंकि बर्न आउट कर दिया। लेकिन अगर फोटो रेस्पिरेशन मैकेनिज्म हो रही है तो क्या वही रेट रहेगी फोटोसिंथेसिस की जो नॉर्मल पे थी? रेट विल बी सेम इन द फोटो रेस्पिरेशन टाइम, rate of photosynthesis will be same will be same बोलो at the time of photorespiration. बोलो others tools. No, sir. हाँ, घट जाएगी, काफी घट जाएगी, क्योंकि दो चीजें नहीं हो सकती। आप ये कहो कि हम खाना भी खा लें और बहुत डबल स्पीड से पढ़ाई भी करें, दिस इज वेरी सिमिलर टू दैट। अगर खाना खा लिया तो ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म डाउन होगा, राइट। मेटाबॉलिज्म डाउन होगा तो नींद आएगी, तो आप वॉकिंग करोगे, है ना। वॉकिंग करोगे फिर क्या करोगे, किसी को कॉल पे भी ले सकते हो हाँ भाई चलो बात ही कर लेते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। कुछ नहीं किया तो बिग बॉस ऑन कर लिया, है ना। मतलब यू आर एग्जैक्टली इन द डाउन मोड, राइट। या तो सो जाते हैं बहुत सारे लोग, खाना खाने का सोना नहीं चाहिए, उसे पानी पीते रहो, टहलते रहो, कुछ ना कुछ माइंड जो है चलाते रहो, क्योंकि माइंड इसमें बहुत ही स्लो काम करता है। फोटो रेस्पिरेशन एक्टिवेट कब होता है? इन द हाईलाइट इंटेंसिटी, ठीक है। और उस समय स्टोमेटा विल क्लोज, तो CO2 कंसंट्रेशन इज डाउन, CO2 कंसंट्रेशन इज डाउन, तो आप ऑटोमेटिकली अब फोटोसिंथेसिस तो खत्म होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो मेन सबस्ट्रेट है वो है CO2 वाटर, CO2 वाटर और क्लोरोफिल, राइट। अब जब CO2 ही नहीं है तो व्हाट यू आर एक्चुअली, जब बंद ही है स्टोमेटा तो कौन सी फोटोसिंथेसिस? यही बात वो कह रहा है कि ये देखा गया कि व्हेन algal and cyanobacterial cell are grown in air and there is 5% CO2, तब तो ठीक ठाक था सर, लेकिन जैसे लो CO2 में ट्रांसफर किया तो दे आर शोइंग सिमिलर बिहेवियर, फोटो रेस्पिरेशन जैसी कंडीशन होगी, क्योंकि लाइट इंटेंसिटी हाई नहीं है, हमने सिर्फ लो CO2 कंसंट्रेशन कर दी। बस स्टोमेटा तो है नहीं इसमें ज्यादा, साइनोबैक्टीरियल सेल में की जगह नहीं, स्टोमेटा है एल्गल सेल में, वो तो सेल है सिंपल, है ना। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, दे आर शोइंग द सेम सिम्टम एज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो अब और भी देखा गया कि अगर CO2 कंसंट्रेशन एक लिमिट में करते हैं 0.03%, देन व्हाट इज हैपनिंग कि दे आर नाउ कंसंट्रेटिंग, मतलब सेविंग मोड में आ गए, they are concentrating CO2 into converting CO2 into the bicarbonate. Or under these low CO2 conditions, cells are no longer photorespiratory.
ओके, बहुत ज्यादा CO2 कंसेंट्रेशन लो हो जाएगी तब फोटो रेस्पिरेशन बिल्कुल बंद हो जाएगी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि वही बता सकता है जो इस स्टैंडर्ड तक पढ़ाई करेगा। वी आर डिवोटिंग गुड टाइम इन एनालिसिस। सेकेंड लेक्चर में ही हमने खत्म कर दिया था C4, C3, केल्विन साइकिल सारा खत्म कर दिया, बट इंडिविजुअल डिस्कशन वाज रिक्वायर्ड। आई फेल्ट दैट वो हमेशा भी काम आएगा, हमेशा ही काम आएगा, बिकॉज एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है देन यार मतलब आप मेच्योर हो जाते हो, आप क्लास में जा रहे हो कहीं भी जा रहे हो, यू हैव कॉन्फिडेंट दैट कि हमारा फोटो रेस्पिरेशन बंद नहीं होता वी आर इन द क्लास। आपका दिमाग बंद होगा, क्योंकि टीचर जब खड़ा है बच्चों के सामने तो यू हैव नो ऑप्शन टू टर्न आउट द पेजेस, टू टर्न आउट योर माइंड। एग्जैक्टली राइट। That is the suppression of photo respiration in very very low CO2 condition, and that is happening. That has been observed in the algal cell and cyanobacterial cell. तो इसका क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मीन्स what we can conclude from this discussion and this finding of algal and cyanobacterial cell. It means there are some plants which don't have photo respiration at all. ठीक है ना, तो उनमें क्या होगा, what will happen into those plants? तो क्या उनका नॉर्मल रिस्क को काम करेगा, फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रही है तो क्या CO2 वो कंसंट्रेट कर पाएंगे? All these questions are there. So that question is resolved if you know there are various mode of carbon fixation. Only C3 mechanism is not existing. C4 भी है और CAM भी है। तो एक हो गया एल्गल सेल में। अब अगर एक पेज में करें तो हम आप आराम से बता सकते हैं कि एल्गल सेल में देयर इज नो स्टोमेटा, ऑल फोटो रेस्पिरेशन इज बिकॉज ऑफ CO2 कंसंट्रेशन। ये भी नहीं कि हाई लाइट कंडीशन, ये अलग है कि C3 C4 कैम में हाई लाइट की वजह से ये एक्टिवेट हो रहा है, बट यहाँ पे CO2 कंसंट्रेशन इज डिसाइडिंग एक्टिवेशन ऑफ फोटो synthesis, respiration. हाईलाइट इज इंड्यूसिंग। तो यहाँ पे जो मेन एंजाइम है रुबिस्को फिनॉल, C4 ऑलवेज हॉट एनवायरमेंट, जैसे राजस्थान में कैम प्लांट्स कहाँ पे होंगे, डेजर्ट में होंगे, कैम डेजर्ट में होंगे, और C3 आपके प्लेन नॉर्मल एनजियोस्पर्म। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. And also we can conclude from the discussion that under very low condition the photosynthesis is essential also. So what is the cell is doing? They are concentrating CO2 in the form of bicarbonate pathway, bicarbonate pump इसकी बात करें, CO2 pump है ना, use of CO2 by bicarbonate pump in case of suppression of photorespiration. तो बाइकार्बोनेट क्या होगा कि दैट इज, जैसे हम क्या करते हैं फास्टिंग करने के पहले हम क्या करते हैं, हमारे देश में बड़ी फास्टिंग होती है, खूब खाना खाते हैं टू मेक द बैलेंस। और अगेन हमने देखा है कि फास्टिंग में भी लोग बहुत हेवी डाइट खाते हैं, है ना, देसी घी के लड्डू, काफी एनर्जी रिच चीजें खाते हैं। So that is the mechanism. Suppression. In case of suppression of photorespiration, bicarbonate pump is there, and they allow proper use of CO2. So carbonic anhydride and bicarbonate में convert होगा, they are stored like glycogen. Glycogen की तरह stored है bicarbonate में, तो that can be converted to the CO2 for the photosynthesis with the help of enzyme carbonic anhydrase.
अब जो सेल, ये किस सेल में बात हो रही है, जहां पे लो CO2 है, वहां पे ये पंप देख सकते हो। अब हाई CO2 है तो उसकी पंप की जरूरत ही नहीं। In case of high CO2, you cannot see this pump. Pump is absent. SCO3 pump is absent. है ना? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पंप कहां पाया जाएगा? व्हाट यू कैन गेस? व्हाट इज एग्जांपल? एल्गी, aquatic plants, cyanobacteria. Right? So these pumps are absent in the higher plants because there is not a CO2 condition to low हो ही नहीं सकती। Already carbon dioxide problem is there. Carbon dioxide is very high in the environment. तो केल्विन साइकिल रन करना चाहिए। इसका पर्पस क्या है? एडिशनल जो सिस्टम, दिस इज यू कैन कॉल देम एज एडिशनल सिस्टम that is present in the cyanobacteria and algae. Why this additional system is there? To run the Kelvin cycle smoothly. To run Kelvin cycle smoothly. ठीक है जी। लेकिन आप ये बोलो कि ये फ्री का हो रहा है, नहीं, दे आर इन्वॉल्विंग एट द कॉस्ट ऑफ एटीपी। केल्विन साइकिल में खैर एटीपी प्रोड्यूस हो रही है, एटीपी एनएडीएच, बट थोड़ी सी एटीपी खर्च करनी पड़ रही है। जैसे अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो व्हाट इज एसेंशियल, आपको थोड़े पैसे खर्च करना पड़ता है, फ्री में तो नहीं पहुंच सकते, कंपटीशन इतना ज्यादा है, पहुंचोगे भी तो बहुत देर लगेगा। वेरी सिमिलर टू दैट कि आप CO2 पंप, कार्बोनेट पंप भी यूटिलाइज करना चाहते हो, केल्विन साइकिल भी रन कराना चाहते हो, तो थोड़ा सा आपको एटीपी खर्च करना पड़ेगा। तो देन लाइफ सेवर विल बी देयर। ओके, तो एक्चुअल में फोटो रेस्पिरेशन इसका है ऑक्सीजन से। अगर कोई पूछता है कि सेपरेशन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन मीन्स व्हाट यू विल से? सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेशन। याद आया? सेपरेशन ऑफ, you know one thing, any toxic thought is very very dangerous for the mind. अगर आप रिसर्चर हो, साइंटिस्ट हो, वेरी गुड स्टूडेंट हो, तो you should be away from the toxic thoughts, because if any toxic words or sentence or any kind of that making you down or suppressing, also they are suppressing your oxygenation system. आपकी ब्रीदिंग भी बढ़ जाती है ना, आपको चिंता हो जाती है, आपकी चेहरे की खुशी गायब हो जाती है, स्माइल इज becomes like CO2. That is separation of oxygen. Photo respiration separation means separation of oxygenation. क्योंकि होता क्या है, कल बताया था, Rubisco is involved in both. This is a double agent. This is a double agent. अगर हाई CO2 होगा, in case of high CO2, high CO2, so photosynthesis. Otherwise, they can use low CO2 condition में they can use the oxygen also to form the C2 components. C2 component आपको बताया था क्या? एक बार और रिवाइज करूं, अगर रिवीजन की जरूरत है तो बता दो, आई कैन रिवाइज इट अगेन। मुझे लग रहा है कि एक बार और चाहिए आपको, है ना? बोर्ड पे बताऊं? है ना? अभी थोड़ा सा ना आपका भी रिस्क डाउन हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा बोर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी तो ठंडी से ऑक्सीजन लिया है, ये 500 है।
So, beautiful screen, right? So what I am discussing here, we are discussing the topic is photo respiration, right? There is a various question. What is the photo respiration? Central role किसका है? There is enzyme called as the Revsquare. ठीक है? Revsquare. 15 is Now in C3 plants, high CO2. So this is activating सीधे photosynthesis. There is no need of photo respiration. Clear? अब यहाँ पे सेम C3 plants है, but condition is reverse. High intensity light. When there is a high intensity light, अब now condition is reversed. अब क्या इसने किया? Oxygenation. Oxygenation starts. Right? Oxygenation means activation of photorespiration. Photorespiration में सारी प्लांट है, C3 भी है, C4 भी है और CAM भी. तो अगर C3 प्लांट गलती से हॉट रीजन में आ गया, तब भी photorespiration will be activated and they will save the plant, save the photosynthetic apparatus. अगर ये C4 प्लांट है या CAM है, then what is happening? The same Rubisco is now with the help of oxygenation they are forming the C2 compound जो हमने बताया photorespiration involved. अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? There are three organelles. There are three organelles. One is the chloroplast. chloroplast. Other one is Peroxisome. peroxisome. ठीक है, peroxisome. And third one is Mitochondria. 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 Peroxisome, this is rich in catalase. अब C2 जो कंपाउंड बना ग्लाइकोलेट और ये इधर आ गया कन्वर्ट हो गया ग्लाइऑक्सिलेट. ग्लाइऑक्सिलेट लेकिन बना तो क्या हुआ? A lot of Sp2 is released which is neutralized by the enzyme catalase. Peroxisome तो बच गया. Now ये जो है this is converted to the glycine. ठीक है, मैंने बताया है मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ग्लाइसिन डिकार्बोक्सिलेज. तो इसका पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि C4 प्लांट या कैम में क्या होता है? स्टोमेटा इज क्लोज्ड. स्टोमेटा इज दिस इज स्टोमेटा क्लोज्ड. जब स्टोमेटा क्लोज हो गई, राइट, देन देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ CO2. CO2 जब एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो जो सेल में है फोटोसिंथेटिक apparatus जिसको बोल रहे हो, इसमें CO2 हो गई लो, राइट? ठीक है. अब मैंने ये बताया था कि इन द नाइट, इन द डे टाइम, इन द नाइट व्हाट इज हैपनिंग? Stomata is now ओपन. ठीक है, ओपन हो रही है. तो जब स्टोमेटा क्लोज थी फिर क्या हुआ? फोटो रेस्पिरेशन इज एक्टिवेटेड एंड दिस फोटो रेस्पिरेशन इज एक्चुअली ऑक्सीजनेशन. एंड इफ दिस ऑक्सीजनेशन इज एक्टिव वी आर इन्वॉल्विंग ऑल थ्री ऑर्गेनेल टू स्लो रिलीज ऑफ
CO2, क्योंकि CO2 तो एक्सचेंज हो नहीं रही, जो हो रही है उसको धीरे धीरे ही यूटिलाइज करना है, सो दैट केल्विन साइकिल शुड नॉट स्टॉप. ऑब्जेक्टिव इज टू रन केल्विन साइकिल. आप कह रहे हैं कि अगर मान लो C3 प्लांट हो या C4 प्लांट हो या कैम हो, अगर इसमें फोटो रेस्पिरेशन बंद हो जाए टोटली, तो व्हाट विल हैपन? तो अगर C4 प्लांट है, कैम है, तो ऑलरेडी दे आर इन द एक्सपोज टू हाईलाइट कंडीशन. और C3 जो फोटो रेस्पिरेशन जो है, दिस इज अ फोटो प्रोटेक्टिव. एग्जैक्ट रोल ऑफ दिस सिस्टम इज photo protective by closing the stomata. ठीक है, so that CO2 exchange should be stopped, water loss should be stopped, right? तो नाइट में ये CO2 exchange will occur, नाइट. ठीक है, तो नाइट में क्या करते हैं फोटो. अब भाई अगर आप देखो फोटोसिंथेसिस की क्या कंडीशन है, क्या चाहिए? CO2 वाटर प्लस क्या चाहिए? लाइट. बात समझ रहे हो? ये तीनों कंडीशन चाहिए, नहीं समझे? तो रात में क्या मिसिंग है? रात में CO2 ज्यादा, पानी ज्यादा, लाइट कम. तो ये फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? तो इनको नेचर ने एडिशनल व्यवस्था दी. क्या? मेसोफिल सेल के साथ क्या रहेगी? बंडल सीट रहेगी. ठीक है ना? और कैम में क्या है? यहाँ पे क्या बन रही है? C4 कंपाउंड, मैलिक एसिड. ठीक है ना? मैलिक एसिड बन रही है. मैलिक एसिड बनने का फायदा क्या है? दे आर लेटर ऑन रिलीजिंग CO2. C4 में भी वही है ना? C2 साइकिल चल रही है एंड दे आर रिलीजिंग द CO2. तो केल्विन साइकिल रन कर पड़ी, रन हो गई. यहां भी रन हो गई क्योंकि CO2 अल्टीमेटली चाहिए. और ये चीज ऑब्जर्व की गई एल्गी में. आ जाओ, एल्गी में तो कोई फोटो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म ही नहीं है, हाईलाइट में भी नहीं है. तो एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया में कैसे रन कर रही है केल्विन साइकिल? ये कैसे रन कर रही है यहाँ पे? बोलो. तो यहाँ पे देखा कि एक्चुअली CO2 इज रेगुलेटिंग एवरीथिंग, है ना? तो अगर CO2 5% से 2% कर दें तो फोटो रेस्पिरेशन की तरह ही सिम्टम आ रहे हैं. मीन्स अब यहाँ स्टोमेटा तो है नहीं. नाउ दे इवॉल्व separate mechanism. And what is the mechanism? Development of SCO3 pump. SCO3 pump का फायदा क्या है कि they have the carbonic anhydrase in the low condition, they are converting of the CO2 to SCO3, and later on with the help of carbonic anhydrase they are converting them into the CO2. तो यहाँ भी केल्विन साइकिल रन कर गई. तो अब ये क्वेश्चन पूछा कि फोटो रेस्पिरेशन इज एसेंशियल इविल और नॉट? द आंसर इज यस, क्योंकि ये फोटो प्रोटेक्टिव है, हाईलाइट में भी प्रोटेक्ट कर रहा है ना? और एक जनरल कंक्लूजन बनाना है ना, कंक्लूसिव बात देना है. तो एल्गी साइनोबैक्टीरिया में भी क्या कर रही है? सेविंग कर रहा है ना? सिमिलर मैकेनिज्म आ रहा है, सिमिलर सिम्टम आ रहा है. एंड ये भी देखा गया कि अगर फोटो रेस्पिरेशन म्यूटेंट क्रिएट कर दे, देयर इज ए कंडीशन ऑफ फोटो रेस्पिरेटरी म्यूटेंट. कौन सा कलर अच्छा लग रहा है तुम लोग को? बोर्ड सारे मुझे पता है तुम लोग यही बोलने वाले, सारे अच्छे लग रहे हैं, है ना? लग रहा है जुगनू चमक रहा है स्काई में. कूल लग रहा है ना? हाँ सर. तो फोटो रेस्पिरेशन म्यूटेंट में अब म्यूटेंट क्रिएट कर दिया. अब पूछा कि फोटोसिंथेसिस होगी कि नहीं?
वो भी पूछ रहे हो C4 प्लांट में, कैम में पूछ रहे हो, C3 में पूछ रहे हो। अब आप याद करो पूरा मैकेनिज्म, ये तो आंसर भी दे पाएगा जिसको पूरा मैकेनिज्म क्लियर है। हमने क्या डिस्कशन किया भाई, फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में तो ये रन कराने के लिए ना हो रही है भाई, फोटोरेस्पिरेशन। ये केल्विन साइकिल कैसे रन कर पा रही है, बिकॉज ऑफ स्टेपिंग मैकेनिज्म। भाई C2 हुआ, ग्लाइकोलेट आया, ग्लाइक्सोलेट आया, फिर ग्लाइसिन में कन्वर्ट हुआ, फिर CO2 रिलीज हो गया ना, फिर वो केल्विन साइकिल में। तो ये जो सीधे सीधे हाई लाइट इंटेंसिटी में बर्निंग आउट की मैकेनिज्म थी, डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म थी, वो बच गई। लो CO2 कंडीशन है, फोटो रेस्पिरेशन आपकी एक्टिव नहीं है, राइट। अगर फोटो रेस्पिरेशन की वो सिस्टम ना हो, रुबिस्को ना हो, व्हाट इज द मेन प्रिकर्सर, RUBP, रेगुलेज 1,5 फास्फेट, रेगुलेज 1,5 फास्फेट, ये मेन प्रिकर्सर है। हाँ, तो ये तो सब में पाया जा रहा है, C3 में कर लो, C4 में कर लो, टाइम में, सब में। तो ये दोनों का काम कर रहा है। ये लो CO2 कंडीशन में ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है। जो काम था कि ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा, अपना वो ऑक्सीजन एक्सेप्ट करके, और फिर इसीलिए कार्बन का लॉस हो रहा है, कार्बन का लॉस हो रहा है। लेकिन इसी कार्बन, जितना कार्बन लॉस हुआ उतना कार्बन फिक्स भी हो रहा है केल्विन साइकिल। हाँ, और क्या प्रोडक्ट बना, Yes, sir. 1,5 फास्फेट, RUBP प्लस क्या कंबाइन हुआ था यहाँ पे बताओ, CO2, तभी तो कार्बन फिक्स हुआ ना, CO2 RBP। हाँ, और क्या sir. कंपोनेंट, क्या कंपाउंड बना यहाँ पे, व्हाट इज द प्रोडक्ट, ग्लूकोज। अच्छा अभी बताया था कुछ देर पहले, याद करो, RBP प्लस CO2 केल्विन साइकिल है ना, याद करो। फिर तो ATP NADPH बनेगा ना भाई, केल्विन साइकिल का पर्पस टू फॉर्म द ATP NADPH। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनता है, यस, व्हाट प्रोडक्ट इज देयर, मैंने वो साइकिल बताया था पीछे। ATP 12 NADPH 15 ATPase। हाँ, पीछे पन्ना पलटो, मैंने दिखाया था वो जो है। नहीं ऐसे सर्किल में बनाया था, याद है, दो सर्किल थी, RUBP यहाँ था, याद करो, यहाँ पे CO2 बाइंड करके क्या बन रहा था, फास्फोग्लिसरेट बन रहा था। हाँ सर, हाँ सर, पीजिए। है ना, सर हाँ, 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना था, फास्फोग्लिसरेट। एक में यहाँ पे और CO2 एक का में लॉस बना होगा, था। हाँ, CO2 फास्फोग्लिसरेट। यहाँ पे 2 PGA है ना, यहाँ पे 3 PGA हो जाता है, फास्फोग्लाइकोलेट, 2 फास्फोग्लाइकोलेट 3 फास्फोग्लाइकोलेट, वो रिजनरेट कर रहे थे RUBP, और फिर CO2 से बना के ये फास्फो PGA। अभी समझ में आई पूरी कहानी, इतना आसान नहीं है C3 कैम C4 को समझना। अभी डेप्थ में जाके भी एक्सपेरिमेंट म्यूटेंट के साथ, एल्गिसाइन बैक्टीरिया के साथ, है ना, प्रोटॉन पंप के साथ, उनके स्ट्रक्चर के साथ, क्या कन्वर्जन हुआ, किसमें कन्वर्ट हुआ, है ना, सारी चीज का समरी यही है। इसको सेव कर लें, ये ड्राइंग कॉपी है, और इतना भी वीडियो अपलोड कर देंगे तो पूरा तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सिर्फ इतना हो। बाकी चीजें तो चाहिए ही, देखो, है ना, ऐसा थोड़ी ना कि हम इकट्ठा थोड़ा सा स्प्लिट में पढ़ाई कर लिया तो फिर देखो बोर्ड की हालत हाँ, अभी अच्छा लग रहा है। नाउ दिस इज लुकिंग फ्रेश। हाँ भाई, अब कुछ पढ़ा, कुछ दिमाग में चीजें हुई। तो एनाटॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई देयर इज ए क्रैंज एनाटॉमी, बंडल सीट, ओरिजिन ऑफ बंडल सीट। प्लाज्मोडेस्माटा वाला कंसेप्ट है। 14 CO2 का क्या एक्सपेरिमेंट था, मैरिडन एस्पार्टेटा कार्बोक्सिलेशन प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल, कल बताया था। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि C2 का प्रोडक्ट क्या है, ग्लाइकोलेट, C3 का
C3 का फिर तुम्हें नहीं याद आएगा, मुझे पता है। C3 का प्रोडक्ट क्या था बेटे? C4 का तो हो गया मैलेट एस्पार्ट। C3 का केल्विन साइकिल में वो C3 प्रोडक्ट क्या बनता? पायरुवेट। याद आया? क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हेन radioactive CO2 was given, 14 radioactive CO2 was given to the C4 plants. So what product is possible? Both product is possible, mallet and aspartate. Mallet and aspartate. तो ये कल डिस्कशन हुआ था about the anatomy, plasmodesmata. I have discussed that. Now you can see the C3 plant. B is the C3 plant. Okay, C3. This is the C4. काफी बड़े-बड़े सेल you can see here. जी. Mesophil cell. Mesophil cell. Plasmodesmata. What is the role of plasmodesmata? So मेसोफिल एंड बंडल ऑफ शीट्स को सेपरेट करते। हाँ, and also they are transport pathway, metabolite transport of C4 acid to bundle seed cells. The C4 cycle concentrate, exactly C4 cycle is a mechanism to concentrate CO2 in the bundle seed cell. Bundle seed cell क्या है? जैसे हम खाना क्या करते हैं, खाना क्यों खाते हैं? स्टोर करते हैं एक्चुअली खाना, और धीरे धीरे वो डाइजेस्ट होता है, धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज होती है बॉडी में। ऐसा नहीं कि हमने जितना भी खाना खाया वो उतना CO2 ब्लास्ट करके हमारे ब्रेन में। दिस इज नॉट सो। तो C4 साइकिल कैम साइकिल में जो भी मैकेनिज्म है, द फर्स्ट मैकेनिज्म इज टू स्टोर द CO2, है ना। C4 होते कहाँ है? हॉट कंडीशन। हॉट कंडीशन में स्टोमेटा याद रखो क्लोज, CO2 तो मिलनी नहीं है, स्टोमेटा इज क्लोज इन द डे। तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगी? राइट। तो नाइट में वो इकट्ठा करते हैं क्योंकि स्टोमेटा इज ओपन इन द नाइट। तो अगर सेम फोटोसिंथेटिक मशीनरी जहां केल्विन साइकिल है वहीं पे CO2 एक्यूमुलेट हो जाएगी, तो ये तो डिस्टर्ब हो गया ना मैकेनिज्म, है ना। नहीं समझे? जैसे आपका घर एक स्टोर हाउस है और स्टोर हाउस में कोई आपसे कहे कि जाके सो जाओ, बोलो आप सो पाओगे? स्टोर हाउस अलग होगा। दिस इज द बंडल शीट इज एग्जैक्टली व्हाट? स्टोर हाउस, स्टोर हाउस ऑफ CO2। और मेन मैकेनिज्म कहां पे हो रही है? आपकी मेसोफिल सेल। फिक्सेशन ऑफ CO2 मेसोफिल सेल्स। मिटा दूं ये जितना लिखा हुआ है, फ्रेश करूं? क्या बोलते हो? ठीक है। सो ये है स्टोर हाउस। दिस इज a स्टोर हाउस ऑफ CO2 and the mesophyll cell, exactly this area is main CO2 fixation। ठीक है ना। ये कैसे स्टोर कर रहे हैं? CO2 आया, दे कन्वर्ट इनटू बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का ऑक्सीडेशन हुआ फास्फोनिल पायरुवेट के साथ एंड दे फॉर्म C4 एसिड। C4 एसिड के रूप में दे आर स्टोर्ड इन दिस बंडल शीट cells। Okay, they are stored in the
bundle sheath cells. And how they are converted again? How their CO2 can be used by the mechanism of decarboxylation. So you can divide CO2 body electron. So what we can say? What we can say, beta? There are two portions. One is the, what is this? This is a bundle sheath cell. Bundle sheath. ये क्या है? मेसोफिल. राइट. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? CO2 is coming by this way, right? So CO2 or phosphoenol pyruvate, they are being converted into the C4 component. तो C4 component जो है C4 component just now you can see ये है प्लाज्मोडेस्माटा. ये बात कर रहे थे ना प्लाज्मोडेस्माटा का क्या रोल. प्लाज्मोडेस्माटा पैसेज दे रहा है दिस टू C4 कंपोनेंट. C4 कंपोनेंट एग्जैक्टली क्या है? माइलेज. क्या है? माइलेज. एंड ये कब हो रहा है? CO2 concentration in the night. CO2 converted into the SCO3. SCO3 plus PEP forming the malic acid. Clear? Malic acid बना रहे हैं. अब ये malic acid ट्रांसपोर्ट. Because of malic acid decarboxylation, there is a two product. CO2 is released by the mechanism of decarboxylation. और यहाँ पे CO2 ये C3 कंपाउंड पायरुवेट वगैरह हो गया, तो ये चला जाएगा इधर केल्विन साइकिल. ठीक है बच्चा, समझे? केल्विन साइकिल. अब केल्विन साइकिल एग्जैक्टली यहाँ नहीं हो रही है, इधर जा रही है इसी रूट से. नाउ दिस C3 कंपोनेंट इज केल्विन साइकिल यहाँ रखा देंगे. ठीक है. और ये केल्विन साइकिल में CO2 कहाँ जाएगा? फोटोसिंथेटिक पाथ. जब दिन होगा तो CO2 प्लस लाइट एंड दे विल स्टार्ट. This is the exactly mechanism in the C4 plants. So C4 plants exactly bundle sheath. This is what? Bundle sheath. This is what? Bundle sheath. Bundle sheath का रोल क्या है? This is working as a store house of CO2. How this is storehouse of CO2? Means in the night they are accumulating CO2 in the form of malate accumulation. अब जैसे डे होगा, in the daytime the CO2 again is released by malate decarboxylation. Decarboxylation. CO2 is released in the daytime. ठीक है. केल्विन साइकिल चल पड़ती.
एग्जैक्टली रोल ऑफ बंडल शीट सेल का पूछ सकते हैं. एग्जैक्ट रोल इज द स्टोर हाउस. मेन ऑपरेटर्स इज मेसोफिल सेल, जो कि कॉमन टू ऑल. C3 में भी मेसोफिल सेल होगा. एडिशनल बंडल शीट कहां पाई जा रही है? C4 प्लांट्स में. और कैम प्लांट्स का नाम क्यों पड़ा? बिकॉज they are running the C4, they also called the C4 cycle, because they are farming mostly millet and asparagate. तो इसलिए कैम में भी ये मैकेनिज्म है. अगर ये C4 यहाँ पे कम्प्लीट हो रहा है तो ये कैम कम्प्लीट है. C4 साइकिल ऑपरेट हो रही है, जहां मिलेट एस्पार्टेट ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है. मिलेट का डिकार्बोक्सिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट for the release of C4. ठीक है, क्लियर बच्चों? बनाया डायग्राम, कॉपी बना लो. हाँ सर. ये ना प्लाज्मोडेस्माटा इसका नाम है ना. प्लाज्मोडेस्माटा. इसी के थ्रू सारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है. कैल्विन साइकिल यहाँ पे ऑपरेट हो रही है. ठीक है. ऐसे पढ़ने में मजा भी आ जाता है ना कि सारी चीजें क्लियर हो रही है, कनेक्टिंग है ना, कैसे क्या आ रहा है. तो यू हैव नॉट टू रिमेम्बर स्टेप स्टेप. एक चीज नहीं कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया. बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल? एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख ले, रट ले रहे हैं उसको याद कर ले रहा है. ऐसे नहीं आता कुछ. हम यहाँ अगर साइंटिस्ट है तो हम कुछ भी पूछ सकते हैं. प्लाज्मोडेस्माटा का रोल पूछ सकते हैं, बंडल शीट का इवोल्यूशन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंस पूछ सकते हैं, मैलेट कैसे जा रहा है, CO2 कैसे रिलीज कर रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन मैकेनिज्म पूछ सकते हैं, है ना. केल्विन साइकिल एग्जैक्टली कहाँ है? तो बच्चों ने केल्विन साइकिल यहाँ भी देख रखा है बुक में, यहाँ भी. तो दे आर कंफ्यूज क्योंकि बिल्डअप कॉन्सेप्ट नहीं बिल्डअप किया तो उनको लगेगा कि अरे किताब में देखा तो ये सही है. तो दे आर मेकिंग दिस. तो सफलता में बार बार गिरना इसीलिए होता है बिकॉज यू आर क्रैमिंग. डोंट क्रैम द कॉन्सेप्ट, बिल्ड द कॉन्सेप्ट. मिड लाइफ साइंस का एक नया लोगो बना रहा है, इसको भेजेंगे, देन हेल्प में कि ये सही है कि नहीं है, अच्छा लग रहा है. तो दिस इज योर पाथवे ऑफ प्रोग्रेस. मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे नहीं जोर देता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट पे जोर देता हूँ. एंड दैट इज हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ योर मेरिट. आपकी मेरिट तभी डेवलप होती है, योग्यता तभी डेवलप होती है व्हेन यू आर नॉट क्रैमिंग द कॉन्सेप्ट, लर्निंग द कॉन्सेप्ट. क्रैमिंग द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपका कोई भी एग्जाम क्रैक हो सकता है, एक तो लक बाई चांस का है. कोरोना में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब साल भर में एक एग्जाम हो गया. तो वो भी होगा कि नहीं होगा अभी डिक्लेयर नहीं, क्या होगा. ठीक है. अब ये देखो अगले साल से क्या होगा. लाइव क्लासेस में रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा. ये सारी वीडियोस आपकी पड़ी रहेंगी, एडवांस वाली दूसरी वीडियो ये सारी गूगल क्लास में पड़ी रहेंगी. तो जो भी बच्चे ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए हेल्प होगी कि हमने जैसे टाइमिंग के हिसाब पे रन करना है, बाकी डिटेल स्टडी भी करते रहेंगे और दिस डिस्कशन पार्ट. ठीक है जी, सेव कर लिया मैंने ये भी, है ना. आई विल प्रोवाइड इन द व्हाट्सएप. नाउ इट्स क्लियर. Reaction of C4 photosynthetic carbon cycle. How many reactions are there? None. Okay. Dikinase पहली बार तुमने देखा होगा, यहाँ पे है, बाकी कहीं नहीं आता होगा. Right? The name is dikinase, and this has been used first time here. कहीं पे देखा था आपने? नहीं देखा होगा, है ना. डाइकाइनेज, पायरुवेट ऑर्थोफॉस्फेट डाइकाइनेज. काइनेज सुनोगे, डाइकाइनेज बहुत रेयरली होता है. तो डाइकाइनेज का फायदा क्या है कि पायरुवेट प्लस ATP, है ना, दे आर हेल्पिंग इन द इवोल्यूशन ऑफ पायरो. ये एक यूनिक चीज है
जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। पायरोफॉस्फेट की रिलीज करने में हाउ यू कैन या विच एंजाइम कैन बी यूज टू रिलीज पायरोफॉस्फेट फ्रॉम एटीपी, क्योंकि एटीपी से आपका क्या बनता है जनरली, एडीपी देन एएमपी ऐसे बनाते हो ना, और सब में पीआई बनता है, पीआई लिखते हो, पीपीआई नहीं लिखते हो। तो ओनली डाइकाइनेज आर हेल्पफुल इन द कन्वर्जन ऑफ एटीपी इनटू पायरोफॉस्फेट। और ये भी पूछ सकता है एडिनाइलेज काइनेज एग्जैक्ट रोल क्या है? एग्जैक्ट रोल है सिंथेसिस ऑफ एडीपी, सिंथेसिस ऑफ एटीपी नहीं, एएमपी एटीपी को मिक्स करके। देखो ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि एग्जैक्टली इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एडिनाइलेज काइनेज, पायरोफॉस्फेट की रिलीज में डाइकाइनेज। हम एलानिन ट्रांसफरेज का अमीनो ट्रांसफरेज को पहले बता चुके हैं कि they are helpful in the formation of alanine plus alpha ketoglutarate using pyruvate and glutamate। ठीक है। मैलेट डिहाइड्रेज का क्या काम है? मैलेट फॉर्मेशन। एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज का क्या काम है? एस्पार्टेट। इसी तरह से एलानिन अमीनो ट्रांसफरेज का एलानिन। ठीक है, तो नाम बहुत कुछ सजेस्ट कर रहा है। एडेनाइलेट काइनेज एडीपी को एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये देख लो, पीआई मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, पीपीआई इज यूनिक पायरोफॉस्फेट। व्हिच एंजाइम इज इन्वॉल्व? डाई, बोलो 3-4 बार बोला करो मेरे साथ, देन वी रिमेंबर इट वेल। डाई काइनेज, आज वायस तो ब्रेक नहीं हुई ना? नो सर। हाँ, मैंने वो जगह फिक्स कर दिया जहाँ वाईफाई रखना चाहिए, वहीं पे इसलिए आज ब्रेक नहीं। 2 Mbps की स्पीड वहां आ जाती है, स्ट्रीमिंग काफी स्मूथ हो जाती है। अब ये आपका सारा कॉन्सेप्ट देखते ही आप बता सकते हैं व्हाट इज हैपनिंग इन द बेसोफिल सेल, व्हाट इज हैपनिंग इन द बंडल स्टिच सेल। बंडल स्टिच सेल एग्जैक्टली स्टोर हाउस ऑफ मैलेट। मैलेट आ रही है, मैलेट का स्टोर हाउस ऑफ मैलेट। हाँ, और CO2 रिलीज हुआ, कैल्विन साइकिल, पायरुवेट रिलीज हुआ, ये जो रीजनरेट कर रहे हैं, है ना, टीपी कार्बोक्सिलेज ऑक्सैलेटेट एंड देन मैलेट डिहाइड्रेट से मैलेट बना रहे हैं। तो डाइकाइनेज देखो यहाँ पे, डाइकाइनेज पायरुवेट को कन्वर्ट कर रहा है फास्फोइनॉल पायरुवेट। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ, which enzyme is involved in the conversion of pyruvate to phosphoenol pyruvate। ज्यादातर बच्चे काइनेज मारेंगे, मगर आप लोग हमारे बच्चे हो तो क्या मारोगे? डाइकाइनेज, क्योंकि यहाँ पे पायरोफॉस्फेट रिलीज हो रहा है, और पायरोफॉस्फेट की वजह से दिस इज so now this diagram is easy. They can ask any question and you can answer anything. जैसे अगर पूछते हैं कि what is the precursor of malate? What is the precursor of malate? Phosphoenol pyruvate. What is the precursor of malate? Phosphoenol pyruvate या पायरुवेट भी, दोनों ऑप्शन में से अगर पायरुवेट दिया तो पहले पायरुवेट नहीं दिया है तो फास्फोइनॉल पायरुवेट। हाँ, ठीक है, तो हमें एक एक चीज को एनालिसिस करके नोट्स बनाना है, डायग्राम बनाना है, चार्ट बनाना है, तो ये आंसर मिल गया आपको। C2 ग्लाइकोलेट, C3 पायरुवेट एंड C4 मैलेट एस्पार्टेट।
What is the function of pyrophosphatase? PPI is converted into the inorganic phosphate with the help of pyrophosphatase. Okay. Okay. Mm. Mm. Ladin basement role settling of matter. Okay. So C4 occur in both monocot and dicot. Right? Both monocot and dicot. So what is the cost of CO2 storage in the bundle ship cell? 2 ATP per CO2. 2 ATP per CO2. 2 ATP per CO2. How many ATP? 2 ATP per CO2. And all the C4 enzymes are activated by the light. Okay. CO2 concentrating mechanism in CAM. CAM में कहाँ पे होगा? CO2 store. बोलो. And what is the example of CAM? Example of CAM is vanilla. Okay, pineapple. इसको CAM मेटाबॉलिज्म कहते हैं. CO2 कंसंट्रेशन का मेन मैकेनिज्म है जिसमें C4 बन रहा था. C4 प्लांट में C4 बन रहा था, कार्बन एसिड मेरेटस पर. यहाँ पे क्या बन रहा है? CAM. CAM plant formation of C4 acid also. Right. With the help of अच्छा हाँ, यहाँ पे ये बताया था आपको how the CO2 is captured. CO2 is here captured by the PP carboxylase in the cytosol and the matter that form from the auxiliary state product is stored in the vacuole. यहाँ पे स्पेशल vacuole ये बताया था ना, स्पेशल vacuole. हाँ ये now consider PP carboxylase is there. PP carboxylase convert the PEP into the auxiliary state. यहाँ पे ये बन रहा है auxiliary state, and then auxiliary state with the help of malic acid vacuole में convert हो. वहाँ पे bundle sheet cell था, यहाँ पे क्या है? This is a vacuole. Special vacuole is there. CAM has special vacuole. Magnets. ठीक है जी. क्लियर जो बच्चों, जीनियस बच्चों, साइंटिस्टों, बताओ. ये देखा नहीं आपने कहीं ना? vacuole is not present anywhere except in the granulation acid metabolism. There is temporal separation of CO2 uptake from photosynthetic reaction. CO2 uptake and fixation take place at night, and carboxylation and fixation of internal CO2 occur during the day. Eruptive advantage of CAM is the reduction of water by transpiration instead by the estimated opening during the night, and also acid is concentrated in the vacuole. So when stomata is closed, stomata is closed means star synthesis will be there. Decarboxylation of stored malate and defixation of internal CO2
DHD, तो दो मैकेनिज्म यहाँ पे साथ में होंगे, when stomata is closed, decarboxylation and decarboxylation and deacidification. ठीक है, क्योंकि CO2 पहले स्टोर हो चुकी है, when the dark container is open, a lot of atmospheric CO2 entry inside the God cell, CO2 uptake and fixation lead acidification. Acidification क्यों कर रहे हैं? Because of bicarbonate formation. एसिड है ना, acidification. तो phosphonyl carbonate, bicarbonate, PIP carboxylase, aldehyde, malate, malic acid, like अच्छे से याद कर लो, है ना। डिकार्बोक्सिलेशन डीएसिडिफिकेशन कब हो रहा है? डे में कि नाइट में? लाइट राइट, डे में डिकार्बोक्सिलेशन डीएसिडिफिकेशन, एंड व्हेन इन द नाइट एसिडिफिकेशन, ओनली एसिडिफिकेशन। तो मैकेनिज्म एसिडिफिकेशन एंड डीएसिडिफिकेशन। कैम का बात हो रहा है, कैम का C4 कनेक्ट। कैम में एसिडिफिकेशन इज पॉसिबल इन द नाइट, डे में डीएसिडिफिकेशन एंड डिकार्बोक्सिलेशन। यानी बाइकार्बोनेट भी CO2 रिलीज करेगा और मैलेट भी CO2 रिलीज करेगा, तो दो तरीके से CO2 स्टिमुलेट। दैट्स व्हाई टू प्रोसेस, डीएसिडिफिकेशन एंड डिकार्बोक्सिलेशन, एंड दैट इज हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, पायरुवेट और केल्विन साइकिल भी साथ में रन करेंगे। ठीक है, एसिडिफिकेशन डीएसिडिफिकेशन कॉन्सेप्ट, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। एसिड मेटाबॉलिज्म बिकॉज acidification, bicarbonate is the acid that is formed during the night. इसका स्टार्ट ही कैम का नाइट से होता है, सारा ऑपरेशन नाइट में स्टार्ट होता है इसका, और जब लाइट हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि CO2 रिलीज बाय द टू मैकेनिज्म, डीएसिडिफिकेशन एंड डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन, डीएसिडिफिकेशन। तो फॉस्फेटेज एंड काइनेज ऐसा हो। पीपी कार्बोक्सिलेज इनएक्टिव कैसे होता है बताओ? इनएक्टिव बिकॉज ऑफ फॉस्फेटेज, व्हेन द फॉस्फेट इज एडेड बिकॉज ऑफ काइनेज, तो पीपी कार्बोक्सिलेज बिकम एक्टिव। तो ये चीज पूछा जा सकता है कि पीपी पे जब फॉस्फेट लग जाता है तब ये एक्टिव है, कि फॉस्फेट हटा देते हो तब एक्टिव? दिस इज एक्टिव। झंडा ऊंचा रहे, हमारा झंडा लगा रहेगा तो पीपी कार्बोक्सिलेज एक्टिव। एंड व्हाट इज द फॉस्फोरिलेशन साइट? फॉस्फोरिलेशन साइट इज द सीरीन। सीरीन पे आपको फॉस्फोरिलेशन एट सीरीन, इसलिए इसको लिखते हैं सेरोइच। Starches synthesized in the chloroplast. Sucrose is synthesized in the cytosol. Yeah, sucrose is synthesized in the cytosol from triose phosphate. Starch is synthesized in the chloroplast. Starch is synthesized in the chloroplast. याद रहेगा? Starch is, ये बता चुका हूँ, starch is synthesized from chloroplast, and the glucose moiety of ADP glucose is actually there. ADP glucose is here. यहाँ पे UDP होता है साइटोसोल में, यूडीपी ग्लूकोज, यहाँ पे एडीपी ग्लूकोज। तो नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ द टर्मिनल ग्लूकोज ऑफ ग्रोइंग स्टार्च, क्योंकि स्टार्च क्या होता है? पॉलीमर होता है ना, तो उसमें नॉन रिड्यूसिंग एंड कार्बन को अटैच होगा, तो एडीपी ग्लूकोज की वजह से ये स्टार्च बनता है। बट दिस इज द प्रिकर्सर ऑफ स्टार्च। यूडीपी ग्लूकोज इज प्रिकर्सर ऑफ सुक्रोज। और एचटीपी ग्लूकोज कैसे बनता है? ट्रायोज फास्फेट, ट्रायोज फास्फेट। ठीक है,
ये चीज CSR में पूछा हुआ है, ये वाला पॉइंट। एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट स्टार्च एग्जैक्टली कैसे बनता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट टू स्टार्च। तो इसके बीच में कुछ रिएक्शन होते हैं, फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1-फॉस्फेट, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बनता है ADP ग्लूकोज। फ्रक्टोज कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1-फॉस्फेट में, सॉरी ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में, और फिर ADP ग्लूकोज बनता है। और ADP ग्लूकोज एग्जैक्टली इज द पॉलीमर following the chain elongation। chain elongation में involve is ADP और ADP ठीक है सर। अरे मैडम हंसते रहा करो, बातें करते रहो, है ना। दिमाग में एक वेंट होता है जैसे कमरे में, ठंडा होता है दिमाग, गर्म हो जाता है नॉलेज लेते लिए। तो थोड़ा चेन एलोंगेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउ द स्टार्च फॉर्मेशन ये पूछ सकता है। विद हेल्प ऑफ एडीपी ग्लूकोज। एडीपी ग्लूकोज कैसे बना, ग्लूकोज एंड फॉस्फेट। ग्लूकोज एंड फॉस्फेट कैसे बना, फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट। तो ये पूरा पाथवे हो सकता है। और ये जो एडीपी ग्लूकोज है ये एग्जैक्टली 4 कार्बन, जैसे अगर स्टार्च का अगर आप स्ट्रक्चर देखते क्या होता है, अल्फा 1,4, ठीक है ना। तो ये ऐसे जाती है और चेन ऐसे जुड़ती है, ब्रांचिंग इसको बोलते हैं। तो ब्रांचिंग में एडीपी ग्लूकोज कहाँ पे आ रही है, ये 4 साइड, ये 4 साइड है। इसका क्या नाम है, बोलो। एडीपी ग्लूकोज, ये ग्लूकोज आ रही है 4 साइड, और ये पूरी चेन बन रही है स्टार्च। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन बोलते हो। एमाइलोज में 1,4 होती है, अल्फा 1,4, एमाइलोपेक्टिन में 1,6 होती है। कितना अच्छा समझ में आ गया ना, कैसे स्टार्च बना, क्या प्रिकर्सर है, चेन कहाँ पे ऐड हुई, एवरीथिंग। एंड सुक्रोज इज सिंथेसाइज्ड इन द साइटोसोल विद हेल्प ऑफ, ये देखो पूरा फ्रक्टोज 6-बिस्फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट, एंड देन यू कैन सी ये तो खैर सुक्रोज सिंथेसिस कहते हैं। स्टार्च को मैं बता रहा था कि स्टार्च सिंथेसिस इसके आगे हो जाएगा। तो नाउ यू कैन ड्रॉ ये, अब आपको इतना नॉलेज हो गया। फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट क्या बना देगा, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट। अब ये क्या बना देगा, एडीपी ग्लूकोज, और एडीपी ग्लूकोज इज एग्जैक्टली एडेड एट 4 साइड। 4 साइड इज नॉन रिड्यूसिंग एंड। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो स्टार्च बनता है वो कहाँ पे ऐड होता है, नॉन रिड्यूसिंग एंड पे कि रिड्यूसिंग एंड। तो एडीपी ग्लूकोज इज एडेड हियर एट 4 साइड नॉन रिड्यूसिंग एंड। ये है स्टार्च सिंथेसिस, ठीक है। ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए ये मैकेनिज्म, fructose 6-phosphate kinase converting fructose 6-phosphate into fructose 2,6-bisphosphate, है ना। तो यहाँ पे fructose 1,6-bisphosphate हमने बताई दिया, fructose 1,6-bisphosphate बन ही रहा है, और fructose 6-phosphate उससे बन जाएगा। fructose 6-phosphate इज द प्रिकर्सर ऑफ सुक्रोज सिंथेसिस। अगर ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ
ये तो चलो फास्फेटेज है ना, फास्फेटेज है, फास्फेट रिमूव करने वाला एंजाइम है। ये फास्फेट को कहाँ से रिमूव कर रहा है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फास्फेट रिमूव करके इसको फ्रक्टोज 6 फास्फेट बना रहा है, एंड दैट इज द प्रिकर्सर ऑफ सुक्रोज, प्रिकर्सर ऑफ sucrose synthesis, precursor of sucrose synthesis. Okay जी, sucrose synthesis. ठीक है, अच्छा सुक्रोज सिंथेसिस का what is the limiting factor, what is for the rate of photosynthesis, viscoactivity under low CO2 condition and high light condition. Okay, viscoactivity और UV जनरेशन हाई CO2 में ये लिमिटिंग उल्टा है, तो विस्को का लो CO2 कंडीशन इज द लिमिटिंग फैक्टर, बट जो प्रिकर्सर है RUBP दैट इज हाई CO2 होगा तो RUBP जनरेशन स्टॉप, हाई CO2 RUBP जनरेशन स्टॉप, लो CO2 विस्को एक्टिविटी स्टॉप। हरे रामा, ठीक है, विस्को एक्टिविटी लाइट हाई तो विस्को एक्टिविटी तक भी जाएगा, यहाँ पे लो लाइट होगी तो RUBP रीजनरेशन गया। तो फोटोसिंथेसिस का रेट देख लो, एक ही टेबल में सारा दिया CO2 CO2 लिमिटेशन, तो विस्को एक्टिविटी ऑक्सीजनेशन की तरफ जाए, ऑक्सीजन लिमिटेशन अगर होगी तो विस्को एक्टिविटी स्ट्रांग होगी, इस टाइम वीक नहीं होगी, एक्टिविटी स्ट्रांग, विस्को एक्टिविटी विल बी लो अंडर लो CO2, लो CO2 एंड लो लाइट कंडीशन, विस्को एक्टिविटी लो लाइट कंडीशन में हाई हो जाती है। ठीक है, इसको याद कर लोगे ना, ये लिमिटिंग कंडीशन मतलब लो CO2 विस्को एक्टिविटी लो लाइट विस्को एक्टिविटी हाई, लो CO2 विस्को एक्टिविटी हाई, लो ऑक्सीजन विस्को एक्टिविटी हाई। ठीक है बच्चों, so this is the technique how you can measure. Flat light sensor is there that can estimate the power, photon irradiance. Spherical light sensor, lens rate, synthetic photon oscilloscope. है ना, ऑलरेडी दिस इज डिस्कस, आज खत्म कर देंगे, राइट। वायलोजेंथिन वगैरह का सारा कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, प्रिंसिपल साइकिल। ब्राउन रेशियो एक नया टर्म है, तो व्हाट इज द ब्राउन रेशियो? ब्राउन रेशियो इज द रेशियो ऑफ सेंसिबल हीट लॉस एंड इवेपोरेटिव हीट लॉस। बाउंड रेशियो, बाउंड रेशियो, ब्राउन नहीं बाउंड, ठीक है। तो एग्जैक्टली दिस इज द एस्टिमेशन ऑफ evaporation against heat loss. Evaporation
और हम लोग जैसे वो लेते हैं ना, पसीना होता है, हम लोग पसीना क्यों होता है? ठंडा करने के लिए बॉडी को। इसी तरह से प्लांट भी इवोपरेट करते हैं, क्यों? कूल होने के लिए। ये टर्म दिया गया था बाउंड, तो इसलिए बाउंड रेशियोज। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रेस्पिरेशन और पर्सपिरेशन। इवोपरेटिंग कूलिंग इसको बोलते हैं, इवोपरेशन कूलिंग बाय इवोपरेशन। Factory में stomata closure beyond evaporation cooling or the heat is dissipated by sensible heat loss and the bound ratio is infinite and that case. Okay. तो अगर प्लांट विद हाई बाउंड रेशियो मतलब हीट लॉस ज्यादा हो रही है, they have tendency to conserve water. Okay. They have tendency to conserve water. ये भी पूछ सकते हैं कि what are the other mechanism beside the evaporation to cope up with the heat? तो isoprene chemical formation is there. मैंने बताया था ना जेंथोफिल, जेंथोफिल ही है वो जो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट हीट। कैरोटीन, जेंथोफिल, आइसोप्रीन। आज ये सारा खत्म हो गया। फोटो इनहिबिशन हमने काफी पढ़ लिया, डिटेल में पढ़ लिया, काफी चीजें हमने कर ली। क्रोनिक फोटो इनहिबिशन कभी कभी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द क्रोनिक फोटो इनहिबिशन? तो दिस अकरिंग व्हेन देयर इज ए एक्सेस डैमेज व्हेन हाई लाइट इज लीड्स आर एक्सपोज्ड टू हाई लाइट्स। ठीक है, एक्सपोजर टू हाई लेवल ऑफ एक्सेस लाइट दैट डैमेज द सिंथेटिक सिस्टम एंड डिक्रीजेस बोथ क्वांटम एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम photosynthetic rate. Chronic photo inhibition is associated with damage and replacement of D1 protein from the action center of PS second. PS second में D1 protein D2 होता है, मैंने बताया था। तो chronic photo inhibition तब होगा जब डैमेज हो जाएगी D1 प्रोटीन की PS second रिएक्शन सेंटर में, क्योंकि आपको बताया था PS second पहले स्टार्ट होता है, PS second पहले स्टार्ट होता है लाइट के इफेक्ट में, एंड फिर दिस इज कनेक्टेड टू PS1। यहाँ पे जो D1 होती है वो डैमेज होती है। When this is damaged, this is called as the chronic photo inhibition. This condition create a chronic photo inhibition. देखा कितना पसीना बहाना पड़ता है अल्लाह करने इतना आसान नहीं नॉलेज। अभी तो सीख रहे हो, जब तुम खुद लाइफ में करोगे तुम्हें पता, मजा भी तो आएगा बहुत सारा, लेकिन यह है कि इनफाइनाइट पर्सपेरेशन, तो बहुत मजा बहुत आता है, लेकिन सही गाइड मिले, सही लाइन, भगवान करे आपको बहुत अच्छा गाइड मिले, अच्छा गाइड मिले। हमारा तो गाइड ऐसा था जो 2 साल में एक बार बात करता था, तो दैट वाज काइंड ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। वेस्टिंग ऑफ टाइम ज्यादा हो गया और रिजल्ट कम आया। भागता था मेरे से गाइड, क्यों भागता था? क्योंकि उसको आता ही नहीं था। बहुत बहुत सारे क्वेश्चन होते थे, बहुत ज्यादा जंप लेता था, बहुत ज्यादा चीजें करने की कोशिश करता था, तो उसको रोकने के लिए वो मेरे से बात ही नहीं करता। दैट इज फोटो इनहिबिशन। तो फोटो इनहिबिशन के कंडीशन में डिक्रीज इन द क्वांटम एफिशिएंसी एज फोटोसिंथेटिक apparatus। तो फोटो इनहिबिशन टर्म तभी यूज करोगे व्हेन देयर इज अ डैमेज टू फोटोसिंथेटिक apparatus। डैमेज टू photosynthetic apparatus।